اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ حقائق ٹی وی میں آج ہمارے مہمان نور محمد قصوری صاحب، یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے 2 دفعہ ایڈوائزر رہے اور ایک پہلے دن سے لے کے آج تک یہ پیپلز پارٹی سے وابستہ ہیں۔ اگرچہ ہمارے پروگراموں میں یہ کھلے دل سے ان کی کرپشن اور ان کی جو اگر کوئی ایسی کوئی چیز ہے جس کا پتہ چلتا ہے اس کی مخالفت ضرور کرتے ہیں، لیکن ان کی ہمدردیاں، ان کے جو وابستگی آج بھی انہیں کے ساتھ ہی ہے۔ قصوری صاحب، کل ایک میٹنگ ہوئی ہے گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ، کراچی کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں انہوں نے میٹنگ کی ہے اور اس میں انہوں نے اپنی انڈسٹریز کی چابیوں کا ایک پورا بیگ، آپ جس سمجھ لیں جیسا ایک زیور باکس ہوتا ہے نا، چابیاں بھر کے اس میں گورنر اسٹیٹ بینک کو پیش کی ہیں کہ جناب ہم سے آپ نے سب کچھ چھین لیا ہے، اب یہ چابیاں بھی ہم سے لے لیں، ہم نے کیا کرنی ہے، انڈسٹری تو چل نہیں رہی، نہ آپ ہمیں کوئی را مٹیریل کے لیے فارن ایکسچینج دے رہے ہیں، نہ ہماری ایلسیاں کھل رہی ہیں، نہ ہمارے کسی قسم کی کوئی آپ فیسلٹی ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، اور جو ڈالر کا ریٹ ہے اوپن مارکیٹ میں اس کی منہ مانگی قیمت ہمیں دینی پڑ رہی ہے۔ اگر کہیں ضرورت پڑی تو 270 تک تو جو اوپن مارکیٹ کہہ لیں، بلیک مارکیٹ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اس میں یہ یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اور قصوری صاحب، میرا اندازہ ہے کہ یہ اگر انہوں نے ڈالر فری کر دیا جو کہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے تو یہ ڈالر 500 سے کم نیچے نہیں کھڑا ہوگا اور یہ قوم پھر بھی لے گی، کیونکہ جنہوں نے چوری کرنی ہے، جنہوں نے ڈاکے مارے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس قوم کے ساتھ زیادتی کی ہوئی، جو لوٹ کے باہر پراپرٹیاں بنا چکے ہیں، انہیں ڈالر ہی چاہیے، انہیں روپیہ تو چاہیے نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گورنر اسٹیٹ بینک کا ایک امیزنگ بیان ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے جن بینکوں نے فارن ایکسچینج غیر قانونی طریقے سے کمایا اور بیچا، ہم ان کے خلاف انکوائری پوری کر چکے ہیں اور 31 جنوری کو ہم ان کے خلاف ایکشن شروع کر دیں گے۔ مجھے اس سے بار بار ہنسی آ رہی ہے، یہ کس کو سنا رہے ہیں؟ اور جو کہتے ہیں نا کتنا جھوٹ اور بولو گے، تو یہ پیدا ہی جھوٹ بولنے کے لیے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ لوگوں کو ایسے ایسے مسخرے بن کے چیزیں دکھاتے ہیں کہ لوگ شاید انجوائے کریں، لیکن اب انہیں میں پھر کہہ رہا ہوں، میں کئی 6 ماہ سے وارننگ دے رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ لوگ ان کے بچے اغوا کریں گے، ان کی پراپرٹیوں کو آگ لگائیں گے، ان کے گربان پکڑ کے سڑکوں پہ گھسیٹیں گے۔ زرداری تو نہیں کر سکا کیونکہ وہ خود اسی ٹولے کا ایک ممبر تھا، لیکن اب شاید عوام کو سمجھ آ جائے کہ ان کی دوائیاں کھائی گئی، ان کی خوراک کھائی گئی، ان کا آٹا کھایا گیا، ان کی چینی کھائی گئی، ان کا مستقبل کھا لیا ان لوگوں نے۔ اب اس کے علاوہ ان کے پاس چارہ کوئی نہیں کہ وہ انہیں گربان پکڑ کے گھسیٹیں۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس سلسلے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو احسان صاحب، جو پاکستان کا اکنامک کرائسس ہے، وہ مطلب ہے کہ پچھلے کوئی 2-4 سال یا سالوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پچھلے 20-25 سال سے ہم نے جو پالیسی اختیار کی ہوئی تھی سارے معاملات میں، چاہے سیاسی ہوں، معاشی ہوں، انتظامی ہوں، آئینی ہوں، قانونی ہوں، ایک یہ جو پالیسی تھی نا جس کو مطلب کہ نظر انداز کرنا ہر چیز کو، جو ہمارے سٹیک ہولڈر ہیں اور ہمارے ڈیسیژن میکر ہیں۔ اچھا، ایک لفظ قصوری صاحب میں بار بار سنتا ہوں، پڑھتا بھی ہوں، سٹیک ہولڈر، یہ ڈاکو آپ کے سٹیک ہولڈر ہیں؟ یہ چور آپ کے سٹیک ہولڈر تو عوام ہے بیچاری۔ سٹیک ہولڈر سے جب ہم مطلب ہے کہ سٹیک ہولڈر تو عوام نہیں ہے، آپ کی بات تو ہم ان لوگ چوروں ٹریلوں کو کیوں سٹیک ہولڈر کہتے ہیں؟ پاکستان میں عوام ہے نا، وہ اب کوئی میٹر نہیں کرتے۔ ہاں، یہ ماننے والی بات پاکستان میں ان کو کوئی، ان لوگوں کے لیے یہ بھیڑ بکری ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہ ان کے لیے کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ یہ جو عوام کی جو پرواہ کرنے والے تھے وہ بے نظیر بھٹو کے بعد کام ختم ہو گیا،
जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के बाद अवाम की बात करना, अवाम के लिए खैर बात करना। विदाला में अपॉलजी उससे भी तो अपने खामद की सिर्फ चलो, की ना। चलो, जब कोई मीटिंग करने जाता है कहते थे बड़े साहब को मिलते जाएं, और बड़े साहब ने अपना 10% 20% मांग लेना होता चलो था। उसकी छोटी मोटी गलती कोताही आप समझ, लेकिन अवाम की वो देखिए गलती कोताहियों के अलावा ठीक। कोई, लेकिन ये था कि वो अवाम की के लिए मुजामती या अवाम की बात करना, अवाम के हाँ, ये वो करती थी, या इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मैं ये समझता हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो के बाद वो अवाम की बात करने वाला मुजामित है ही की कोई ताकत नहीं। खत्म हो गई। अब हो गया है अपॉर्चुनिस्ट क्लासेस का आर्टिकल। आज देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, मुस्लिम लीग हो, ABCD कोई भी पार्टी हो, तमाम है वो मतलब गए के मुतफिक है कि एक बात पर, कि उनके मफादात को। अब देखें ना, जब ये शुगर मिलों की इंक्वायरी का मसला आया, तमाम पॉलिटिकल जो शुगर मिलों के मालकान थे, चाहे वो मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, जमा किसी भी पार्टी से, सब इकट्ठे हो गए। सीमेंट की इंक्वायरी हुई, सब इकट्ठे हो गए। IPPs की इंक्वायरी हुई, सब इकट्ठे हो गए। बिल्कुल ठीक। इसी पेट्रोलियम कंपनियों की इंक्वायरी 4 साल तक मतलब गवर्नमेंट मुख्तलिफ करती रही, लेकिन उनका कुछ नहीं बना और वो फाइलें अड़ब। इसलिए मैं कहता हूं कि अब ये इस वक्त पाकिस्तान में अपॉर्चुनिस्ट क्लासेस हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं कि जैसे तवाइफों के मोहल्ले में कोई खातून, शरीफ खातून चली जाए तो वो जो है तवाइफे, वो उसको माई हाजन कह के भगा देगी, माई हाजन आ गई, माई हाजन आ गई। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में एहसान साहब इतना मजबूत हो गया ये निज़ाम अपॉर्चुनिज्म का कि अब इसको चैलेंज करना किसी एक फर्द का, आप कह ना कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या एक इंस्टीट्यूशन या जुडिशरी का आप कह लें, सिक्योरिटी जब इंस्टीट्यूशन का, वो भी अब हम पार्ट एंड पार्सल है इसी लाइफ की। अब इसके लिए जो भी हमने कर, इसके लिए और तरीका है मुतफिक, इसके लिए भी तरीका मॉडल बन गए। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बन गई है एहसान साहब, उसमें यह हो गया है कि इस वक्त पाकिस्तान की पूरी जो दौलत है वो पाकिस्तान के पहले को 22 खानदान होते थे, अब उनको 100-150 खानदान कह लें। उनके पास मतलब है कि आज सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, उनके पास है, शुगर मिले हैं उनके पास है, स्टील मिले हैं उनके पास है, टेक्सटाइल मिल्स हैं उनके पास। आप क्यों नहीं कहते सरे महल उनके पास है? आप जो क्यों भी नहीं कुछ कहते कि जो लंदन की प्रॉपर्टी मैं है सर वो ये उनके पास कहता है? हूं आप क्यों नहीं कहते कि दुबई के प्लाजा मैं उनके कहता पास हूं कि है? जी सर जो भी कुछ है आज उनके पास है। 25-25 हजार कनाल के घरों में वही लोग रहते हैं। सही। मेरे और आपके पास तो पूरे पाकिस्तान में 5 मरले का भी घर नहीं है। तो इसलिए हम तो उनसे आवाम से भी पीछे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सूरत हाल है, इसी सिस्टम में अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई बेहतरी पाकिस्तान के लिए हो जाए, अवाम के लिए, तो वो अब मुमकिन रही नहीं है। इसके लिए आपको खसूसी इकदाम करने पड़ेंगे। हमारे पास 2-3 मॉडल हैं एहसान साहब। तुर्की में ये क्राइसिस आया तो उन्होंने मिलकर आर्मी के साथ और वो पॉलिटिकल पार्टीज बैठी और उन्होंने 50 साल का एक मतलब गाय की रोड मैप बना लिया कि ये पॉलिटिकल पार्टीज का होगा, यहाँ सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस होंगे और वो चलता रहा मॉडल। उसमें उन्होंने कामयाबी। फिर उसके बाद आप हमारे सामने बांग्लादेश है, उन्होंने मतलब क्या देखा कि ये जर्नैल और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका जो ये मतलब कार्टेल है, इसको तो उन्होंने जुडिशरी को सामने रखा और मतलब है कि जुडिशरी को साथ अटैच किया और उन्होंने इस तरीके से वो क्राइसिस से निकले। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा क्राइसिस है, पाकिस्तान में जितने भी क्राइसिस आए इस वक्त पाकिस्तान में, आप ये कह सकते हैं कि उससे भी जो आप सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा जो है ना ख़राब पोजीशन पे हम पाकिस्तान पहुंच गया है। और ख़ास तौर पे एहसान साहब, इस साल हमने जून तक 35 अरब डॉलर की, देखें ये बता रहे हैं ना 23 या 24 अरब की, इस दफ़ा जो हमने वो चाइना से कमर्शियल और मुख्तसर मुद्दत के लिए जो लोन लिए थे उनकी भी किस्तें शुरू हो गई हैं। इसलिए ये हमारा जो क्राइसिस है जून तक जुलाई 35 अरब डॉलर का पे पहुंच जाएगा। हमने असल तो जो छोड़े, हमने तो उनके जो होता है ना सर्विस चार्ज, सूद कह लें, मतलब हाँ सूद कह ले, सर्विस चार्ज कह ले, वो भी देने की पोजीशन में नहीं रहे। और असल बात यह है आज आपके लगे लिपटी वगैरह कि पाकिस्तान में जो ये हमारी जो करप्शन थी,
नज़र अंदाज करना था, और जो बद इंतज़ामी थी उससे ये हो गया है कि आपको एहसान साहब सियासी तौर पर जो हमारा मौजूदा स्ट्रक्चर है, चाहे किधर पॉलिटिकल सिस्टम में, तो आपको देखें जो हमारा वजीर दफा है उसको डिफेंस टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं है। सही है कि डिफेंस स्ट्रेटेजी क्या होती है, उससे डिफेंस करना किसका है, ये तो देखे बता ना, दें वैसे। मतलब उसका लेवल देखे पाकिस्तान तो उन्होंने सर, लोगों वो के रहमो करम पे छोड़ देखे दिया। वो हमारा वजीर खजाना, मतलब उसको बेचारे को इकोनॉमी सर का उसको पता तो नहीं। खजानों का बहुत पता ना कि नहीं, कैसे चोरी वो का तो पैसा छुपाना है, देखे, कैसे वो टैक्स चोरी छुपाना है। फ्रॉड धोखा दे के माहिर है ना, चोरी फ्रॉड धोखा देकर माहिर होना और बात है, मुल्क के लिए काम करना और बात वो है। इकोनॉमिस्ट है, हमारा मुंशी है, वो इकोनॉमिस्ट नहीं है, हमारे मुंशी है, वजीर मुंशी है। सर हमारा वजीर आजम का लेवल, मैं तो यकीन जानो रात को जब ये देखता हूँ या सोचता हूँ कि मैं पॉलिटिकल एक कारकुन हूँ, मेरी 55 ईयर पॉलिटिकल मतलब स्ट्रगल है, तो मैं बचपन से मैं ये समझता हूँ कि ये कहाँ पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया, माशरा बांझ हो गया है कि हमारा आज वजीर आजम है, जो वजीर ख़जाना है, वजीर दिफा है, और जो दूसरे ओहदों पर बैठे हैं वो लोग, उनकी अहलियत है वो एक सवालिया निशान है कि वो इस पोजीशन के लोग हैं ही नहीं, ना उनके पास विजन है, ना उनका कोई कॉन्सेप्ट है, ना उनकी नीयत है, ना उनके पास कोई प्लानिंग है, ना वो सोच है। सिर्फ जाती जो भी उनकी पॉलिसी बनाते हैं वो उनके ज़ाती मफादात के लिए, उनके ख़ानदानों के लिए, उनके ग्रुप्स के लोगों के लिए है, पाकिस्तान के अवाम के लोगों के लिए इनके पास कोई चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से अगर यही सूरत हाल रहा, और ख़ास तौर से मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के डिसीजन मेकर हैं और जो स्टेक होल्डर है और जो पॉलिसी साज हैं, जो मतलब अगर स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस के लोग हैं, उनको फौरी फैसले करने होंगे। अगर उन्होंने ये फौरी तौर पे फैसले ना किए तो अब पाकिस्तान के मौजूदा सिस्टम में गुंजाइश नहीं है, पाकिस्तान कोलैप्स दर कोलैप्स की तरफ जा रहा है। और इसका जो है ना, हम दूसरे मुल्क हैं, ये हम जिनकी मिसालें देते हैं कि इंडोनेशिया से मलेशिया अलहदा हुआ, वो तरक्की कर गए, चाइना से ताइवान का जो हुआ वो तरक्की कर गए, पाकिस्तान से बांग्लादेश अलहदा हुआ वो तरक्की कर गए, क्योंकि वहाँ लोग फिर भी वो थिंकर थे, सोचने वाले। पाकिस्तान में जो ये जो ख़ास तौर पे मगरबी पाकिस्तान हम जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा से एहसान साहब एक गुजरगाह रहा है, जितने भी हमला आवर जाए दिल्ली से चलता था तो वो काबुल जाके रुकता था या अलमाता जाके रुकता था, और जो अलमाता से चलता था वो मतलब है कि जाके दिल्ली, रास्ते में सिर्फ हम फैसिलिटेटर थे, उनको लिए सहूलतें देते थे, उनकी खिदमत करते थे, और उन्हीं को दुआ दे के कि तू हार डाल के जाते, चाहे कोई ईरान से आया, हमने हमेशा उनको सहूलतें दी हैं। तो ये जो मुआशरा, इसमें कोई चेंज लानी पड़ेगी आपको, और आपको ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो मिलिट्री इंस्टीट्यूशन और हमारी जुडिशरी और पॉलिटिकल जो है पार्टी और इंस्टीट्यूशन वो मिल बैठ। कसूरी साहब, यहाँ सारे ही आके जो टीवी पे आते हैं जब लिखते भी हैं, और कॉलमिस्ट पे मैं एक अलहदा प्रोग्राम करने वाला हूँ कि उन्हें अब सवाए जूतियाँ चाटने के, खुशामदें करने के और अपनी तरफ से वो उनके नवरत्न बनने के दूसरी कोई ख्वाहिश रह ही नहीं गई। वो भूल गए हैं कि कलम एक अल्लाह की अमानत है, वो भूल गए हैं कि लफ्ज़ों की तौकीर, लफ्ज़ों की इज़्ज़त क्या चीज़ है। वो सिर्फ जूतियाँ चाटने के लिए, प्रॉपर्टियाँ लेने के लिए, प्लाट लेने के लिए, लिफाफे लेने के लिए लिख रहे हैं आजकल। तो ये इस पे हम आपको फिर तकलीफ़ देंगे। आज नाज़रीन, चूँकि आपको पता ही है यूट्यूब के लिए वक्त कम होता है, हम इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं कि हमारे लीड जो सो कार्ड, मैं उन्हें नाम निहाद लीडर कहता हूँ, लीडर का लफ्ज़ उनके लिए, मेरे लिए तौहीन है उनके लिए ये लफ्ज़ बोलना। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे लिए तौहीन है। लीडर का मतलब होता है कायद। अगर यही कायद हैं जिनका कोई विजन नहीं, जिन्हें मुस्तकबिल का कुछ नहीं पता, जिन्हें मुआशरत की रत्ती बराबर अकल नहीं, वो अपनी तरफ से हमारे लीडर कहलाते हैं। और ये जूतियाँ चाटने वाले कॉलमिस्ट 24 घंटे उनकी खुशामदें करते रहते हैं। तो नाज़रीन, हम इस बारे में आपको वक्तन फ़क्तन आगाह करते रहेंगे। अभी हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।